الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرع الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، ابھی آپ حضرات نے حضرت کی زبانی اصلاحی معلوماتی قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین خطاب سماعت فرمائی. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کے باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر کے اس کو دل و دماغ میں بسا کر کے سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے پہلے ہماری اس مدرسے کا، اس دارالعلوم کا مدرسین نے جو محنت کی، آپ کے تعاون سے 4 بچوں کی دستار بندی بھی آپ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا. اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو حضرات دینی اداروں کا تعاون کر رہے ہیں، ہمارے مدرسین جو محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کے تعاون و محنتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اس وقت رات کا آخری حصہ ہے، 12 سے وقت آگے نکل چکا ہے اور ہم لوگ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر میں بیٹھے اور سن رہے اور سنا رہے ہیں. اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے اور یہی محفل جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے کل بروز معاشر آپ کے لیے اور ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے اس آیات مبارکہ میں کامیابی کا ذکر فرمایا ہے. اس وقت ہمارے معاشرے کے کامیابی کا معیار الگ الگ ہے. کامیابی تو ہر انسان ہی چاہتا ہے، جو جس لائن سے وابستہ ہے، سیاست سے وابستہ ہے وہ سیاست میں کامیابی چاہتا ہے، تجارت سے وابستہ ہے تجارت میں کامیابی چاہتا ہے، تعلیم سے جو وابستہ ہے وہ اپنے تعلیم میں کامیابی چاہتا ہے. ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہے، اور ہر انسان کی کامیابی کا معیار الگ الگ ہے. سیاستدان کی کامیابی کا معیار الگ ہے کہ وہ سیاست میں کامیاب ہو جائے، دکاندار کی کامیابی کا معیار الگ ہے، ڈاکٹر صاحب کی کامیابی کا معیار الگ ہے. مطلب ہے کہ ہر انسان کامیابی بھی چاہتا ہے اور ہر انسان کا کامیابی کا معیار بھی الگ الگ ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کامیاب ہے کون شخص، کامران ہے کون شخص، دنیا و آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کون انسان کامیاب ہے، کون کامران ہے، کس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتا ہے، اس کو اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے.
अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, अल्लाह कसम उठा रहा है, जमाने के कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तिजारत करने वाला हो, सियासतदान हो, मुफ्ती हो, फिर साहब हो, कोई भी साहब हो, हर इंसान घाटे में, नुकसान में है। दुनिया की भी नुकसान में, आखिरत की भी नुकसान में है। दुनिया के घाटी में भी, आखिरत के घाटी में भी है। मगर कौन इंसान कामयाब है? कौन इंसान कामरान है? कौन इंसान दुनिया और आखिरत में सरबुलंद है? इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, मगर वही इंसान कामयाब है, वही सरबुलंद है, वही दुनिया व आखिरत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक कामयाब तरीन शख्स है, जो क्या हो, साहिब ईमान हो, ईमान पर उनकी जिंदगी गुजर रही हो और ईमान पर उसका खात्मा हो जाए और ईमान के साथ नेक अमल करते 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 दुनिया से रुखसत हो जाए। अल्लाह फरमाते है कोई इंसान दुनिया में भी कामयाब है, कल बरोज माशर भी वो इंसान क्या होगा, कामरान हो, कामयाब बन करके रहेगा। जमींदार के बारे में नहीं, जागीरदार के बारे में नहीं, कुर्सी इक़्तिदार के बारे में कामयाबी नहीं। अगर दुनिया और दौलत से, कुर्सी इक़्तिदार से, जमीन और जायदाद से, नाम शोहरत से कामयाबी होती तो फिरौन नमरूद सबसे बड़ा कामयाब होता, शद्दाद सबसे बड़ा कामयाब होता। तो कामयाबी का मियार क्या बयान किया गया है? कामयाबी का मियार बयान का ईमान और नेक आमाल, ईमान पर जिंदगी गुजारना। और ईमान कैसे होना चाहिए? ईमान कितना मुस्तहकम होना चाहिए? ईमान पर कैसे मुसलमान को मुस्तहकम रहना चाहिए? तफसीर में लिखा हुआ है कि फिरौन के दरबार में एक लूंडी रहती थी जिसका नाम था मनशा। लूंडी रहती थी जिसका नाम था मनशा। एक दिन वो क्या कर रही है, फिरौन की बेटी की बालों की कंघी कर रही है। कंघी करते 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 कंघी उस लूंडी के हाथ से जमीन पर गिर गई। जैसे कंघी गिरी, उस लूंडी ने क्या करे, उस कंघी को उठाया और अल्लाह का नाम लिया। फिरौन का नाम नहीं लिया, अल्लाह का नाम लिया। तो फिरौन की बेटी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे दरबार में रहती, हमारे यहाँ खाती पीती है, खिदमत करती, फिरौन को रब नहीं मान रही है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब को रब मान रही है। इसलिए कि फिरौन ने भी तो रब होने का दावा कर चुका था। तो फिरौन की बेटी ने कि ये मनशा, तुम तो हमारे घर में रहते हो, खिदमत करते हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तुम फिरौन को रब नहीं मान रहे हो, हजरत मूसा के रब को रब बनाए हुए। तो मनशा ने कहा कि हाँ, मैं फिरौन को रब मानने के लिए तैयार नहीं, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब को रब मान रही हूँ। तो फिरौन की बेटी ने जाकर के अपने बाप से शिकायत की, फिरौन से शिकायत की कि ये जो मनशा है जो हमारे घर में रहती है, ये तुमको रब मानने के लिए तैयार नहीं, ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ला चुकी है। तो लिखा है कि फिरौन ने उस लूंडी को बुलाया और इस कहा कि ये लूंडी, ये मनशा, अगर तुम इस दावे से बाज नहीं और मुझको रब मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो सबसे पहले तुम्हारे बेटों को, तुम्हारे बच्चों को आग में जला दूंगा और उसके बाद तुम्हारा भी वही हशर होगा। मनशा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, औलाद जाए तो जाए, जान तो जाए तो जाए, लेकिन मैं तुझको रब मानने के लिए तैयार नहीं, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ला चुकी हूं। तो लिखा है कि फिरौन ने सिपाहियों को हुक्म दे कि आग जलाओ और उस पर बड़ा कढ़ाई रख दो और उसको तेल से भर दो। जब गर्म हो जाए तो सबसे पहले क्या करो, उस मनशा के बड़े बेटे को ला करके उसमें डाल दो। तो लिखा है क्या को जलाया गया सिपाहियों को। फिरौन तो बादशाह तो रब का दवा कर चुका था, आग जलाया गया है, उस पर कढ़ाई रख दिया गया, उसको तेल से भर दिया गया। जब तेल पूरी तरह से गर्म हो गए, जोश करने लगे, तो उस मनशा के सामने में सबसे पहले उसका बड़ा बेटा लाया और तेल में डाल दिया। 2 मिनट में साफ हो गया है। मनशा देख रही है, फिर
दूसरा बेटा लाया गया, फिर उसको तेल में डाल करके 2 मिनट में साफ हो गया। तीसरा बेटा लिखा है कि तीसरा बेटा जो मनशा की छाती से लगा हुआ था, दूध पी रहा था, जब सिपाहियों ने उसको खींचने की कोशिश की ताकि उसको तेल में डाल दे, तो मनशा उसके माँ जो थे रोने लगी, अपने आंखों से आंसू जारी होने लगे। तो जैसे वो बेटे को खींच लिया, अल्लाह जल्ल शानहू ने उस बच्चे को जो दूध पी रहा था बोलने की ताकत अता फरमाई और कहा कि मां रोने धोने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह अजीज थोड़ी देर के बाद जन्नत में मुलाकात हो ही जाएगी। तो ईमान ऐसे मुस्तहकम ईमान हो तब क्या होता है, अल्लाह के मदद नुसरत मिलता है। और हमारे और आपका ईमान क्या हाल है? हमारे और आपका ईमान तो यह हाल है, अगर थोड़ी देर कारोबार न चले, एक दिन का खाना न मिले, थोड़ी सी मुसीबत और तकलीफ आ जाए, तो मुसलमान क्या करने लगता है, ईमान उसका डगमगाने लगता है, ईमान पर मुस्तहकम रह नहीं सकता है। यही वजह है कि ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि कुरान के बारे में क्या बोला जा रहा है तो मुसलमान के चेहरे पर जब दुख कभी इजहार नहीं हो रहा है। हुजूर की गुस्ताखी हो रही है, कुरान की तौहीन हो रहा है, इस्लाम की तनवीर हो रहा है, लेकिन मुसलमान को रोने धोने तो दूर की बात है, उसके चेहरे पर कभी दुख कभी इजहार नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह है? हमारे ईमान, कुरान से जो ईमान मुस्तहकम होना चाहिए, जो मजबूत होना चाहिए, वो हमारे अंदर वो ईमान मौजूद है या नहीं। अगर ईमान होता, ईमान मुस्तहकम होता, हमारी मस्जिदें खाली होती, आजान सुनने के बावजूद हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह का मतलब क्या है? कभी सोचे हैं? हय्या अलल फलाह का मतलब ये है कि आपको अल्लाह की तरफ से बुलाया जा रहा है, माइक से बुलाया जा रहा है, दिन में 24 घंटे में 5 मरतबा बुलाया जा रहा है। किस तरह बुलाया जा रहा है? हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। ए ईमान वालों कामयाबी की तरफ आओ, ईमान वालों कामयाबी की तरफ आओ, ईमान वालों कामयाबी की तरफ आओ। किसी बंदे की तरफ से नहीं, किसी मिनिस्टर गवर्नर की तरफ से नहीं बुलाया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से बुलाया जा रहा है कि ईमान वालों कामयाबी की तरफ आओ। कामयाबी कहां हुई? कहां बुलाया जा रहा है? मस्जिद की तरफ बुलाया जा रहा है, नमाज की तरफ बुलाया जा रहा है। तो मालूम होता कि ईमान वालों तुम्हारे कामयाबी कहां है? मस्जिद में है, खुदा के घर में है, नमाज में तुम्हारे दुनिया व आखिरत की कामयाबी है, अल्लाह की तरफ से बुलाया जा रहा है। लेकिन मुसलमान नमाज क्या समझ रहा है? नमाज को तो जहमत बनाया हुआ है। नमाज में तो मुसलमान का दिल ही नहीं लगता, मोबाइल तो घंटों चलाएगा, बहुत दिल लगता है, 2 बजे तक उसमें लगा रहेगा, ये फिल्म देखेगा, वो अदाकार देखेगा, वो बंबई का नचने देखेगा, उसमें तो उसका बहुत दिल लगता है। हमारे जवानों का सुबह वैसे चलेगा, सुबह वैसे कपड़ा पहनेगा, सुबह वैसे बाल बनाएगा, अपनी जिंदगी का आइडल किसको बना है? तो मुसलमान। और आइडल किसको बनाया हुआ है? बंबई के अदाकार और नचनी को अपना अदाकार बनाया हुआ है। अरे तुम्हारा आइडल कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तुम्हारे आइडल है, उस पर अमल करो, इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया में भी चमकते रहेंगे, कल बरोज माशर में भी हर मंजिल पर कामयाबी और कमरानी नसीब हो ही जाएगी। फिर कहता है कि हमारे ऊपर तो मुसीबत है, हमारे घर में तो खैर बरकत नहीं, हमारे भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, बेटी और माँ में झगड़ा हो रहा है, होगी क्यों नहीं? जब आप अल्लाह के इतने बागी बन चुके हैं कि अजान सुन रहे हैं, सही सलामत है, कोई परेशानी नहीं, कोई उज़्र नहीं, कोई मजबूरी नहीं, उसके बावजूद में खुदा के घर में घुसने के लिए तैयार नहीं, बारगाह इलाही में झुकने के लिए जब तैयार नहीं, इतना बागे बन चुके हैं, तो फिर तुम्हारे घर में खैर और बरकत आएगा कहां से? बाप बेटी में इत्तेफाक आएगा कहां से? पड़ोसी मुसलमान में नफरत नहीं होगा तो मोहब्बत आएगा कहां से? आज तो हाल ये है, वह काफी हो चुका है और हमारे शुआरा भी इंतजार करके जल्दी माइक खाली हो जाए, वो भी हम इंशाल्लाह आपके सामने में अपना नात मनकबत का गुलदस्ते पेश करेंगे। अब तो हाल ये हो चुका है
कि मुसलमान मुसलमान को सलाम देने के लिए तैयार ही नहीं, मुसलमान मुसलमान से नफरत ही कर रहा है, मुसलमान मुसलमान को जुल्म करने की कोशिश कर रहा है। कोई मुसलमान अगर दुख में पड़ जाए दूसरे मुसलमान को क्या हो जाता है, खुशी उसको हासिल हो जाए, खुशी का इजहार कर रहा है। और हाल ये हो चुका है कि अगर किसी गरीब बच्ची का किसी अच्छे लड़के से रिश्ता तय हो गया है और पड़ोसी वाले को पता चल गया है कि इस गरीब के बच्ची का वहां अच्छे लड़के से उसका रिश्ता तय हो चुका है, तो क्या करने लगेगा, उसको काटने की कोशिश में लग रहा है, उसको काटने की कोशिश ही करेगा। तो मुसलमानों, ये तो दुनिया की परेशानी जो चल रही है चलेगी। असल परेशानी अगर इस हाल में दुनिया से रुखसत हो गए, असल परेशानी तो मरने के बाद शुरू होने वाली है। ये तो शायरों का शेर है कि हमारा साया भी जहन्नम में नहीं जाएगा। वो जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान और हदीस से दूर जिंदगी गुजारेंगे, गैरों के आइडल बनाएंगे, तो जहन्नम में नहीं जाएंगे तो आप कहां पे चले जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, इस हाल में न रहो कि हम तो मुरीद हो चुके, गौसे पाक का दामन हमारे हाथ में है तो हम तो जन्नत में पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारे गलत फहमी है। गौसे पाक ने 40 साल से इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है। इबादत का ये आलम है। अगर आपको वाकई सच्ची मोहब्बत होती तो इशा के वजू से फजर की नमाज न सही, कम से कम क्या होते, 5 वक्त नमाज का तो पाबंद रह ही जाते। इसलिए मुसलमानों, ये जिंदगी 60 साल 70 साल की जिंदगी, ये कोई मोबाइल की जिंदगी नहीं, ये कोठी बंगले की जिंदगी नहीं। हुजूर फरमाते कुन फिर दुनिया का अन्न का गरीब, कि ईमान वाले दुनिया में ऐसे रहो, ऐसी रहाइश इख्तियार करो जैसे कि एक मुसाफिर की जिंदगी होती है। आप यहां से जाते हैं, सऊदी चले जाते हैं, कमाने के लिए चले जाते हैं, सफर में चले जाते हैं, बंबई सऊदी चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, वहां आप क्या करते हैं, एक मुसाफिर की तरह रहते हैं। वहां आप कोई कोठी बंगला नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक मुसाफिर के जरूरत के मुताबिक वहां रह रहे हैं। कमाने के लिए जाते हैं, जैसे आपका वक्त फरो हो गया, कमाई हो गई, आप अपने घर चले आते हो। तो हुजूर फरमाते हैं कि कुन फिर दुनिया का अन्न का गरीब, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि एक मुसाफिर रहता है। मुसाफिर जहां भी जाता है, सफर करता है, जरूरत के मुताबिक वो ठहरता है, जैसे उसका जरूरत फरो हो जाता है उसके बाद रवाना हो ये जाता है। तो मतलब ये हुआ कि दुनिया में ऐसे रहो कि जरूरत के मुताबिक घर भी बनाओ, जरूरत के मुताबिक तिजारत भी करो, जरूरत के मुताबिक कारोबार भी करो, जरूरत के मुताबिक सियासत भी करो, जरूरत के मुताबिक अपनी जिंदगी के तमाम आमाल करो। लेकिन ये न करो कि जरूरत को असल मकसद बना करके रहोगे। हम लोगों क्या कर रहे हैं, जरूरत को अपना असल मकसद बनाए हुए हैं। तो मुसलमानों, ज्यादा बोलने से क्या फायदा, रोज तो सुनते ही हैं, कुरान और हदीस की बातों सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो माहौल बना हुआ है, जो पोजीशन हम लोगों ने संभाला हुआ है, मुसलमान उस पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार है नहीं। झूठ का पोजीशन संभाला हुआ है, कुछ भी हो जाए झूठ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरे को परेशान करने का हम लोगों ने पोजीशन संभाला हुआ है, कुछ भी हो जाए दूसरे को परेशान करके रहेंगे, दूसरे की जमीन पर कब्जा करके रहेंगे। बेनमाजी होने का पोजीशन संभाला हुआ है, कुछ भी हो जाए हम लोग मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, खुदा के बारगाह में झुकने के लिए तैयार है नहीं। अगर यही पोजीशन रहा और इस पोजीशन में दुनिया से रुखसत हो गए तो कब्र में क्या बनेगा। जरा कब्र का तस्वुर तो कीजिए भाई, उस तन्हाई, उस अंधेरे के घर का तस्वुर तो कीजिए, उस गड्ढे का तस्वुर तो कीजिए। हुजूर फरमाते हैं कि कब्र क्या होगा,
बदआमाल बदकिरदार जो दुनिया से रुखसत हो जाएगा, जुटा फरेब धोखा देने वाला, हसद करने वाला, माँ बाप को सताने वाला, बेहाई से जिंदगी गुजारने वाला, मस्जिद से दूर रहने वाला, जब कब्र में पहुंचता है हुजूर फरमाते हैं कि कब्र क्या बनेगा, हफरतुम मिन हफर नार, जहन्नम के गड्ढों में इस गड्ढा बंद करके रहेगा। और आप तो इस इंतजार में बैठे हुए कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, गुनाह पर गुनाह करते रहेंगे, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा फलां साहब हमारे पीछे में 10वां 20वां 40वां करेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ? ये बात निजाम इलाही के खिलाफ है। आप नमाज पढ़िए, तिलावत कीजिए, सच बोल लीजिए, हुजूर की सीरत के मुताबिक चलिए, उसके बाद आपके ऊपर, आपके पीछे में 10वां 20वां हो जाएगा तो सोने पर सुहागा हो ही जाएगा, सोने पर सुहागा हो ही जाएगा। इसलिए मुसलमानों, जलसे में आए हो और फिर हमारे मुदर्रिसीन ने जो मेहनत की है और 4 बच्चों ने जो अपने सीने में कलाम इलाही को महफूज कर लिया, अल्लाह ताला इस कुरान की सीने में महफूज करने के साथ साथ अमल की भी तौफीक अता फरमाए। ये कुरान, ये अल्लाह का मुकद्दस किताब है। ये कुरान इसलिए नहीं आया है कि आप उस पर कसम उठाए तो कुरान की जिम्मेदारी खत्म हो गई। 20-40 मिनट में पढ़ लीजिए, कोई मर गया, आपने कुरान खाने कर लिया तो कुरान की जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, कुरान आया है, दस्तूर अमल है, एक कानून है, जिंदगी गुजारने का ये कानून है। दुनिया व आखिरत का क्या है, कामयाबी का जरिया है। लेकिन आज कोई मुसलमान कुरान पढ़ेगा, मजाल है। आप लोग तो दूर के बात है, हम लोग जो स्टेज वाले हैं, जो बयान कर रहे हैं, फिर साहब, मुफ्ती साहब, फलां साहब, उन लोगों को भी कुरान पढ़ने का मौका ये नहीं, कुरान पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। कुरान तो लपेट करके ऊपर में रख दिया और टीवी जो है ना, उसको खूब सजा बुझा कर रोज उसके सफाई हो रही है। कुरान को महीने में एक बार साफ करने के लिए तैयार नहीं। कुरान तो मस्जिद में रखा हुआ है, मुसलमान इधर भी गुजर रहे, उधर भी गुजर रहे, कुरान पर गर्द गुबार पड़ा हुआ है, मुसलमान पढ़ना तो दूर की बात है, मुसलमान साफ करने के लिए भी तैयार नहीं। और वही घर में टीवी होगा, उसको सुबह भी खूब साफ करेगा, पूछा मारेगा, शाम को भी खूब पूछा मारेगा, साफ करेगा। यही टीवी तुमको कहां लेके जाएगा मालूम है? यही टीवी पर अगर ये मोहब्बत का इजहार करते रहे, ये तुमको जहन्नम में लेकर के जाएगा, तुम्हारा दुनिया भी बर्बाद करेगा, आखिरत भी बर्बाद करेगा। और यही कुरान को अगर लेकर के साफ कर दिया और फिर उसके बाद मोहब्बत से छूम लिया है और पढ़ भी लिया, तो कहां लेके जाएगा? तुम्हारे दुनिया की कामयाबी भी अता करेगा, आखिरत की कामयाबी भी अता करेगा। इसलिए मुसलमानों, गफलत में मत रहिए। ये इम्तिहान की जिंदगी है, आजमाइश की जिंदगी है, इसको हर इंसान को आजमाया जाएगा। नमाज से आजमाया जाएगा, तिलावत से आजमाया जाएगा, रोजे से आजमाया जाएगा, ज़कात से आजमाया जाएगा, नेक आमाल से आजमाया जाएगा। यही मुसलमान का इम्तिहान है। इसमें अगर आप कामयाब हो गए तो क्या होगा? ज़ालिका फौजुल कबीर, सबसे बड़े कामयाबी को मिलने वाली है, जन्नत आपको मिलने वाला है। जन्नत कैसी जगह, आप तो वक्त नहीं कि मैं बयान करूं। इसलिए मुसलमानों, ज्यादा बोलने से क्या, वो शायर ने कहा है कि तूफान नूह लाने से क्या फायदा, 2 बूंदे काफी अगर असर कर जाए तब। जब असर ही नहीं करेगा, एक जमाना तो जब लोग सुनते थे तो फौरन क्या करते थे, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते थे और उस पर अमल करने की इरादा फरमाते थे। अब तो ये है कि इधर से सुन लिया है और इधर से निकाल दिया है। इसका भी अल्लाह के रसूल ने जिक्र फरमाया कि जो मुसलमान हो करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रख करके, कुरान हदीस पर ईमान रख करके इधर से सुन लेता है और इधर से निकाल लेता है, कल बरोज माशर क्या होगा? लोहा को, छड़ को गर्म कर दिया जाएगा, इधर से घुसा दिया जाएगा, इधर से निकाल दिया जाएगा।
इसलिए मरने के बाद बहुत 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 कटन कटन मनाजिल आने वाले हैं, कब्र आने वाला है, जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि रअयतुल मनाजिर वल क़ब्र अफ़ज़अ मिन्हु। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने बहुत सारे मनाजिर देखे हुए हैं, जन्नत दिखाया गया, दोज़ख दिखाया गया, दोज़ख में मुख्तलिफ जो अजाब का मनाजिल वो दिखाए गए, मैंने देख लिया है। लेकिन कब्र कैसी जगह है? हुजूर फरमाते कि कब्र जो है ना अफ़ज़अ मिन्हु, कब्र ऐसी जगह के तमाम मनाजिल में सबसे घबराने वाले मंजिल है। उस कब्र में सबको घुसना है, सबको जाना ही है। इसलिए उस कब्र के अजाब से बचना चाहते हो, कब्र को जन्नत का बागीचा बनाना चाहते हो, तो कम से कम क्या करो, 5 वक्त नमाजों के पाबंद बनो, मस्जिद को आबाद करो, कुरान जहां तालीम हो रही, कुरान की जहां मदरसे उसको आबाद करो, उसी में ताउन करो, आपस में मोहब्बत से रहो, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहो, हलाल और हराम के तमीज करो, अपने औरतों को पर्दा कराओ। इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया में भी खैर और बरकत होगा, दुनिया में भी अल्लाह के रहमतों से मुस्तफीद होते रहेंगे। और जब कब्र के मंजिल में बन जाएंगे, यही कब्र क्या बनेगा, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागीचों में से बागीचा बन करके रहेगा। अल्लाह जल्ल शानहू के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे और आपकी इस महफिल में हाजिरी को कबूल फरमाए, और हमारे इस मदरसे के माविनीन ने, अराकीन ने, मुदरिसीन ने जो मेहनत की है, अल्लाह सबके मेहनतों को, सबके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह आपको भी दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए, ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। हमको भी अल्लाह दीन इस्लाम पर इस्तिकामत और ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। आज जो हजरात दुनिया से गुजर चुके, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब लोग ये कि हम लोग जाते